السلام علیکم۔ فیئر ٹرائل ود ملک حمید اللہ امان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا تعلق ضلع جہلم کے حلقہ NA60 سے ہے اور صوبائی حلقہ PP24 سے، اور میں آج اپنے علاقے کی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ مکمل سیاسی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ سامنے کیا صورتحال ہے، پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، کون سا امیدوار کس پوزیشن پہ ہے، اور الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں تو جیت کا سہرا کس کے سر سجتا ہے۔ ڈسکس کروں گا آپ سے جو مین جو ہیں 3 پارٹیاں، ان کے امیدواروں کو ہی، جن میں سب سے پہلے ہیں تحریک لبیک کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری زاہد اختر، جن کا انتخابی نشان پیالہ ہے۔ وہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ تحریک انصاف کے بہت سرگرم کارکنوں میں تھے۔ ڈسٹرکٹ جہلم کی تحریک انصاف کی ساری باغ دوڑ تقریباً تنظیمی حوالے سے ان کے ہاتھ میں تھی۔ 9 مئی سے پہلے ہی وہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر کچھ پارٹی سے نالاں ہونے کے باعث انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ان انتخابات میں انہوں نے آزاد وصیت میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ پھر تحریک لبیک کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور اب وہ تحریک لبیک کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتا ہوں سابقہ حکمران جماعت تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری ثقلین کے بیٹے چودھری عدیل حسن، وہ MNA کے امیدوار ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہوں مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں بلال اظہر کیانی۔ بلال اظہر کیانی سابقہ PDM حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں اور ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 بائی 1 تمام امیدواروں کی پوزیشن اور ان کی بظاہر نظر آتی صورتحال کیا ہے اور پس پردہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو اس میں کرین پارٹی سے ہیں پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب، جنہوں نے پچھلے انتخابات میں بھی علاقے کی لوگوں کو حیران کیا تھا جس قدر ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ بڑا سرپرائزنگ تھا PP24 کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں، نمبر پر نہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں، وہ ہیں سید رفعت زیدی، جن کا تحریک انصاف میں بہت پرانے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ان کا بلکہ دعویٰ نہیں، حقیقت ہے کہ وہ جب سے تحریک انصاف بنی ہے ڈسٹرکٹ جہلم میں وہ تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جہلم میں تو نہیں کہہ سکتے، آپ تحصیل سطح پہ صوبہ کی سطح پہ وہ کافی ایکٹیو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار استحکام پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی جو تحریک انصاف کے تھے راجہ یاور کمال، وہ صوبائی سطح پر استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کی حمایت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں کرین پارٹی سے تعلق رکھنے والے کرین پارٹی کے حمایت یافتہ چودھری زاہد اختر کی۔ چودھری زاہد اختر کا سیاسی تو کوئی اتنا ان کا پیچھے کیریئر موجود نہیں ہے۔ وہ تنظیمی سطح پہ تھے، سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ جو حلقے کی سیاست ہے ان میں اتنا ان کا نہیں تھا کوئی خاص رول، لیکن جب سے تحریک لبیک کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ NA60 کی سیاست ہی یکسر بدل چکی ہے۔ چودھری زاہد اختر نے جس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جس طرح تحریک لبیک گاؤں کے گاؤں ان کی حمایت میں اعلان کر چکے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ وہی لوگ بلال اظہر کیانی صاحب کی حمایت میں بھی اعلان کرتے ہیں، وہی لوگ چودھری عدیل حسن کے بھی کرتے ہیں حمایت میں اعلان، وہی لوگ
चौधरी जाहिद अख्तर के भी करते हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट हमारे कुछ ज़राए भी होते हैं, उनसे भी ये मतलब जो है ना इस बात की तस्दीक की जा रही है कि चौधरी जाहिद अख्तर एक मतलब इस टाइम तगड़े कैंडिडेट बन चुके हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं 8 तारीख को। दूसरे नंबर पे मैं जिक्र करूँगा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का। वो किस पोजीशन में हैं, उनका क्या होना है, वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, अवाम उनके साथ है नहीं है, इस पे बहस में इसलिए नहीं करता क्योंकि एक हकीकत है जिसको तस्लीम कर लेना चाहिए सबको। अब मैं इस हकीकत को मतलब इस चीज़ पे ये नहीं कहना चाहता कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जस्ट इतना चाहता हूँ कि इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सियासत में अब कोई जगह नहीं बचती। 9 मई को जो कुछ हुआ, फिर चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो इदारे भी पब्लिक के सामने नहीं रख रहे, तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं वो उनको डिस्क्लोज़ करूं, लेकिन वो आपको नज़र भी आ रहा होगा और मेरे कहने न कहने से कुछ नहीं होता। शायद ये इलेक्शन से पहले ही फॉरेन फंडिंग केस में बैन हो जाए, 9 मई में भी बैन हो सकती है, तो इसके उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो सकते हैं। अगर शार्ट बात करूं तो मैं नहीं समझता कि ये मतलब इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। अगर ले पाएंगे भी तो ये तहरीक इंसाफ के होंगे, अगर जीत भी जाएं तो ये तहरीक इंसाफ में रह नहीं पाएंगे, इनको कोई और घर तलाश करना पड़ेगा। इसलिए इस पार्टी के हवाले से मैं बहस नहीं करना चाहता। हो सकता है मेरी बातें किसी को नागवार गुजरी हों, लेकिन जो हकीकत है उसको तस्लीम कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है बंदा गलत फहमियों में से बाहर निकल आता है। तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नवाज की। NS 60 में बिलाल अजहर कियानी है, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, फिर यंग है और फ्रेश है। लोगों ने उनको भी वेलकम किया था जब वो उन्होंने स्वावा में एक अवामी इज्तिमास में आए थे, लोगों ने उनको वेलकम किया था। मैं लोगों के व्यूज़ सुने कि वो सब कह रहे थे कि बाकी सब तो देखे हुए हैं, ये एक नया बंदा है, इसको हम चांस देंगे। लेकिन फिर वो ये बेरहम सियासत है, इसके बेरहम खेल हैं। वही अवैस खालिद साहब वाला जो वाक़या हुआ, उनको इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया, राजा यावर कमाल को थोपा, तो थोपा ही मैं कह सकता हूँ, उनको थोपा गया दोबारा से PP 24 पे। यावर कमाल साहब के बारे में मैं बात करूँगा बाद में, अभी मैं बात कर रहा हूँ बिलाल अजहर कियानी साहब के हवाले से। तो जब वो उनका पहला सियासी इज्तिमा हुआ तो उसमें तो ये लग रहा था कि शायद बिलाल अजहर कियानी आसानी से सीट ले जाए, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट की सतह के मतलब जितने साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल, वाइस चेयरमैन की कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद थी, पब्लिक थी, ये माहौल नज़र आ रहा था कि उन्होंने इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीत लिए। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि जो चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब या दीगर हैं, उनकी बरादरियाँ हैं, उन्होंने बिलाल अजहर कियानी के हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके पस पर्दा जो एक खेल चल रहा है, जिसकी इतलात आ रही हैं, ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बिलाल अजहर कियानी को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये कोशिशें जारी हैं। मुस्लिम लीग के अंदर से कैसे, ये जो लोकल सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, उसकी बड़ी वजह यह है कि बिलाल अजहर कियानी ही वो वाहिद शख्सियत है जिनकी वजह से NS 60 और NS 61 की सियासत तितर बितर होकर रह गई। NS 60 से फ़रख अल्ताफ़ और चौधरी नदीम खादम के बीच मुकाबला था टिकट की दौड़ का, और NS 61 से वाज़े मतलब
नवाबजादा ख़ानदान के फर्जंद हैं तालब मेहदी, वो उनका वाज़ेह था कि वो उन्हीं को टिकट मिल रहा है। लेकिन बिलाल अज़रकियानी साहब की पार्टी क़यादत के साथ जो ज़ाती वाबस्तगियाँ हैं उनको लेके फिर वो शायद ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हल्कों की मंजूरें नज़र हैं, उस उसको भी लेके उनको एडजस्ट करने के लिए जो सारी सियासत की मतलब पलटा के रख दी नून लीग ने, खुद भी बहुत नुकसान उठाया नून लीग ने, जो फ्यूचर में शायद उनको इस चीज़ का एहसास हो। लेकिन एहसास इस सेंस में होगा कि उनको अपना नुकसान अगर हुआ तो, अगर उनको एक टायर की जगह स्टपनी मिलती गई, उनका रोज़गार सियासत चलता रहा, तो फिर उनको किसी की शख्सियत से, किसी अवैस खालिद हो जाए, नदीम खातम हो जाए, नवाबजादा ख़ानदान हो जाए, उनको इन चीज़ों से कोई गर्द नहीं। इंतहाई माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क के सियासतदान को, चाहे वो बड़े लेवल के हैं चाहे छोटे लेवल के हैं, बड़े लेवल का सियासतदान छोटे लेवल के सियासतदान को और आवाम को कीड़े मकोड़े समझता है, छोटे लेवल का सियासतदान अपने से छोटे वालों को कीड़े मकोड़े समझता है। किसी की राय की, किसी की शख्सियत की, किसी की वफा की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। तो अगर तो उनको स्टपनी मिल गई तो उन्हें परवाह नहीं है कि कोई किधर जाता है, कि कोई किसका बेटा था, किसकी हमारे साथ कितने सालों से वाबस्तगी थी, इस चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उनको कोई स्टपनी ना मिली तो फिर उनको ये एहसास होगा कि हमसे ये अच्छा बंदा ज़ाया हो गया। शार्ट बात की जाए तो अपने मतलब की भीड़ होगी उनको। अब बिलाल अज़रकियानी साहब को यहाँ पे फिट कर दिया गया, चूँकि NA-60 ही मतलब ऐसा हल्का है जहाँ पे फ़र्क अल्ताफ़ साहब ने आइंदा भी सियासत करनी है, यही उनका आबाई हल्का है, दीना के वो रहायशी हैं। चौधरी नदीम खादम हैं, वो भी NA-60 के ही मतलब रहायशी हैं और मजबूत उम्मीदवार भी NA-60 के थे। अब उनको PP 25 में एडजस्ट किया गया, नदीम खादम साहब को, फ़र्क अल्ताफ़ साहब को उठा के NA-61 में एडजस्ट कर दिया गया, बिलाल अज़रकियानी साहब को इधर कर दिया गया। अब जिसका ये आबाई हल्का हो, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि एक बंदा बाहर से आए, उसकी वजह से हमें तोड़ मरोड़ के उधर कर दिया जाए और वो इलेक्शन जीत के मज़े से ये NA-60 में अपने कब्जे जमा ले। एक फितरी अमल है। और फिर मैंने ये कहा ना कि सियासत बेरहम है, इन लोगों को किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई रिश्ता है, ना इनका कोई ताल्लुक है। अपने मफादात हैं तो भाई भाई हैं, मफाद का टकराव हुआ तो लोगों को लड़वाएंगे, FIR कटाएंगे, जेलों में डलवाएंगे। इनकी खातर लाला लाला करने वाले अभी तक भी मेरा ख्याल है कि जो चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ और चौधरी नदीम खादम के आपस में सियासी इख्तलाफात थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इलेक्शन डेज के ऊपर लड़ाइयाँ हुई होंगी, अभी तक मेरा ख्याल है FIR केसेस वगैरह, शायद जेलों में भी कुछ गरीब पड़े हों जो इनकी खातर लड़े थे। लेकिन आज वो दोनों भाई भाई हैं। दिन में 3-4 बार तस्वीर ऐसी आती हैं जो चौधरी नदीम खादम और फ़र्क अल्ताफ़ के यूँ हाथों में हाथ हैं, और मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये इनके बीच में से शायद हवा भी ना गुजरे, इतने ये सगे भाई हैं। फिर क़यादत की बात की जाए तो मैं मौजू से हट रहा हूँ, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। क़यादत की बात की जाए तो ये राजा यावर कमाल है। मैं भी यानी शायद उन 2-4 जगहों का फिर पब्लिक को भी पता है। ये वीडियोज़ भी जो राजा यावर कमाल शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को चोर कहा करते थे कि लूट के खा गई है फलां फलां, वो उन तक मियाँ ब्रदरान तक भी पहुँची हैं, लेकिन उनको स्टपनी मिल चुकी थी इस्तेकाम पाकिस्तान की सूरत में। उन्होंने इनको फिट करना ही था, क्योंकि इज़्ज़त या कोई अखलाकियात मेयार तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों के पास नहीं है। फिर इसी तरह चौधरी सकलैन साहब थे, उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक क्या क्या अलकाबात नहीं किए जब उनको टिकट नहीं मिला। इमरान खान साहब को पागल तक का, लेकिन कोई परवाह नहीं है, उन्हीं को टिकट फिर मिला। इसलिए बेवकूफ़ वो हैं जो इस सियासत की खातर अपने रिश्तों को, ताल्लुक वास्ते को ख़राब करते हैं। तो खैर सोशल मीडिया पे इसकी एक कैंपेन भी चलती है, लेकिन बेवकूफ़ आज भी वही बेवकूफ़ हैं, समझेंगे नहीं, उन्होंने फिर वही कुछ करना। तो इसलिए मैं आता हूँ बिलाल अज़रकियानी की तरफ। बिलाल अज़रकियानी को NA-60 से आउट करने के लिए अंदर खाने
अपनी अपनी बरादरियों को, अपने अपने पक्के वोटर्स को ये कहा गया कि इनू हरवाना है ताकि असी भी इन्हें साढ़े च वापस आइए, ये पैराशूटर आउट हो जाए। मकसद ये है कि उसको मियाँ बरदरान के सामने एक शर्मिंदा करवाना है कि तुमने हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती हमें 60 का टिकट लिया, क्या रिजल्ट लेके आए, ताकि वो आइंदा सियासत से दिल बर्दाश्त हो जाए, यंगस्टर है और निकल जाए। अब ये देखना ये है कि बिलाल अदरकियानी अपनी जो हवारियों की, बज़ाहिर हवारियों की भी जो सियासत है उससे भी कैसे मुकाबला करते हैं और हल्के की अवाम को कैसे कायल करते हैं। बहरहाल फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिलाल अदरकियानी को एक हैज हासिल है कि वो यंगस्टर हैं, फ्रेश हैं, नए हैं। फिर जो इलाके के मसाइल हैं वो भी मतलब ये मुतकाज़ी हैं कि हमारे इलाके के कोई बंदा मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर कम अज़ कम चलो ना भी हो, जैसे राजा परवेश साहब का पूरा निकल आया था, लेकिन कम अज़ कम मिनिस्टर सतह का कोई बंदा हो जो हमारे इलाके के मसाइल को हल करे। तो देखना यह है कि अब होता क्या है। अब ये अंदर की लड़ाइयाँ, एक पार्टी को तो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर कमेंट करना मेरा ख्याल है कि वक्त का ज़िया है। और वक्त का ज़िया इसलिए है कि नज़र आ रहा है आपको भी कि वो मतलब उनके साथ क्या होगा, क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। क्योंकि स्टेट ने जब फैसला कर लिया हो तो फिर उसके ऊपर कमेंट करना बनता नहीं है। बाकी रहेगी ग्रीन पार्टी और PMLN। उसमें जो बाज़ार पोजीशन है वो यही नज़र आ रही है कि चौधरी जाहिद अख्तर ये सीट विन कर जाएंगे, क्योंकि बिलाल अज़रकियानी को अवाम में भी मतलब वो फ्रेश हैं, उनको अपना मनवाने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ रही है, और जो उनको अंदर से अपने हवारियों से मार पड़ रही है वो शायद उनके लिए नाकाबिल तलाफ़ी हो। तो असल फैसला तो 8 तारीख को होना है। हम तो वही आपके सामने राय रख सकते हैं जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, जो कुछ पस पर्दा बतौर साफ़ी ज़राए हैं जो हम तक ये खबरें पहुँचा रहे हैं, वो आपके सामने रखना है। अब सूबाई सतह की बात कर ली जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए तो फिर वही कमेंट है मेरा कि इस पे बहस तो फजूल है। आ जाती है बात ग्रीन पार्टी और राजा यावर कमाल की। राजा यावर कमाल एक फ्यूडल माइंडसेट का बंदा है। मेरी ज़ाती भी अच्छा ताल्लुक दोस्ती रही है उनके साथ। अगर बात की जाए उस बंदे की अपनी शख्सियत की तो वो मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी सोच का मालिक है, गुफ्तगू में अच्छा है। फिर मतलब क्या क्या उनकी खूबियाँ बयान करूँ कि इतना बुरा आदमी नहीं है वो बंदा जितना पोर्ट्रे किया जा रहा है जो लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी मार पड़ती है अपने मशीरों से। मशीरों से हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं राजा शाहिद अजीज़। मेरा मतलब उनसे नहीं है, तो इंतहाई नफीस आदमी, बहुत अच्छे इंसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन लोगों को, यावर कमाल जैसे लोगों को जब ये अपनी मेहनत से या मतलब एफर्ट्स करके इन सीट तक पहुँचते हैं तो फिर जो आ जाते हैं कि यार और तू क्या नहीं है तो साड़ा क्या नहीं आदा ख्याल रखी, वो जो इन लोगों को बरादरीज़म की तरफ उलझाते हैं, मेरा ख्याल है राजा यावर कमाल को सबसे ज़्यादा ख़राब उन्होंने किया। दो तीन मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि सिर्फ एक दो घर थे ज्ञानियों के, वहाँ तक 4-4 5-5 किलोमीटर रोड गई, जबकि जिस यूनियन कौंसिल में मैं रह रहा हूँ पहल बनी खान, उसको खंडर बना दिया गया, इस हद तक नज़रअंदाज किया गया। बल्कि यहाँ क्या सुहावा की जितनी 4-5 यूनियन कौंसिल हैं, 6 यूनियन कौंसिल हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कोई सेहत के लिए काम नहीं हुआ, किसी को जॉब्स नहीं मिली, किसी तरह का कोई जो है ना वो राजा यावर कमाल के ग्रेड पे काम नहीं है। ये कारकर्दगी भी उनका पीछा करेगी आने वाले इंतखाबात में। तो जो अब राजा यावर कमाल की पोजीशन ये है कि इलेक्शन में रह गए 5 से 6 दिन, तो मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक वो यूनियन कौंसिल पहल बनी खान में
कोई एक जगह भी ऐसी नहीं मतलब अपने लिए मुंतखब कर पाए कि जहाँ पे आके वो एक कॉर्नर मीटिंग या एक जलसा ही कर ले। इस हद तक उनके लिए यहाँ पे मतलब आवाम के अंदर एक गुस्सा है कि जो उन्होंने नज़रअंदाज किया। काश वो बरादरीज़म या इन चीज़ों से निकल के पूरे हल्के को अपना हल्का समझते तो आज उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। बहरहाल सियासत है, लोग करते हैं, बरादरियों से फ़ायदे उठाते हैं, बरादरियों को खुश करते हैं, बरादरियों वाले भी फिर बदले में अपने मफादात लेते हैं। तो अगर फेयर हो के इलाके को अपना समझा जाए तो मेरा ख्याल है ऐसी अजीमत नहीं उठानी पड़ती जो आज उनको उठानी पड़ रही है। उनकी इस हक्का कारकर्दगी को देखते हुए और स्पेशली डमेली मोड़ से इस साइड पे जो हमारे स्वाबा की तरफ का एरिया, इस तरफ उनकी मतलब आवाम के अंदर एक क्या कहते हैं नापसंदगी को देखते हुए, और फिर एक और बड़ा फैक्टर है क्योंकि आपको पता है कि तहरीक लबैक एक मजहबी जमात है और इरफान शाह साहब बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और लबैक बरेलवी मकतबा फ़िक्र को रिप्रेजेंट करती है। और जिस हलके में हम रह रहे हैं यहाँ पे 70% जो आबादी है वो बरेलवी ही मकतबा फ़िक्र के लोगों की है। उनको इस वजह से भी बहुत एज हासिल है। फिर दूसरी जो उनके पास एडवांटेज है वो ये है कि वो आपको पता है कि हमारे इस इलाके में पीर मुरीदी भी बहुत ज़्यादा है। वो एक रवातला शरीफ कोई आस्थाना या लिया है उनका अपना भाई, वहाँ पे वो मतलब पीर मुरीदी भी करते हैं। उनके मुरीदों की तादाद भी आगे पीछे गाँव में पूरे हल्के में ही बहुत ज़्यादा, हर गांव में दो दो चार चार ऐसे लोग हैं जो उनके साथ इस वजह से भी मजहबी मतलब वाबस्तगी की वजह से भी अटैच है। और फिर दूसरा एक फैक्टर और भी है जो राजा अवैस खालिद साहब के साथ ज़्यादती की गई, उनको आज़ाद असीयत से भी इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया, FIRs वगैरह हुई, रेड्स हुई उनके घर पे। अब लोगों के अंदर ये भी गुस्सा पाया जाता है कि मकामी बंदे के साथ ये जुल्म ज्यादती की गई और कहा जाता है कि इसके पीछे यावर कमाल है, उनको एडजस्ट करने के लिए सारा कुछ किया गया। अब वो गुस्सा बैलेट पे ही निकलेगा। लोगों के अंदर इस हवाले से नफरत पाई जाती है कि वो आज़ाद असीयत में थे, आप इस्तेकाम में थे, अगर आप में इतनी थी वो मतलब थप्पड़ था तो आप लड़के देख लेते। बहरहाल जो पहली मीटिंग थी राजा अवैस खालिद की वो भी मुखालफिन के लिए काफ़ी परेशान कुन थी। उससे कुछ नताइज वाज़े हो रहे थे तो उसके लिए भी जिसका जहाँ हाथ पड़ता है, मैंने बोला पहले भी बोला कि ये पाकिस्तान है, इसमें किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है, बस एक की जगह लेने के लिए दूसरी स्टेपनी मिल जाए जिससे उसका काम चल जाए तो वो अपना काम चला लेते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है कि इनका जो राजा अवैस खालिद साहब का वालिद था मियाँ साहब बड़े सुने हैं जी, वो कहा करते थे कि जी राजा खालिद मेरा बड़ा वफादार था। नवाबजादा साहब के बारे में सुना एक बार, मेहदी साहब के मियाँ साहब कहा करते थे वो बड़े वफादार हैं, आप किधर गई सारी वफाएं। लेकिन बदकिस्मती फिर वही देखें कि जैसे अंग्रेज़ चला गया तो आज भी हम सुनते तो ये हैं कि वो योधो नसारा किसी के दोस्त नहीं है, लेकिन आज भी हमारे पहनना खाना उड़ना बिछोना सब उन्हीं की कापियाँ हैं, उन्हीं को हम मतलब लाइक करते हैं, उन्हीं को देख के तो हम अपनी जो है ना, बल्कि उन्हीं को देख के क्या अपना सब कुछ बेच के उनके पास जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए ये कुछ चीज़ें हमारे खून में आ चुकी हैं, गुलामी। आज भी राजा वैस खालिद साहब इतना कुछ 2 दफ़ा जुल्म हो चुका, आज भी वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो मेरे खून के अंदर है। तो अब इन लोगों की क्या ज़हनियत है, मैं मतलब इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद है, उसको इख्तियार हासिल है, वो रखे करे, लेकिन इस हद तक इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर आप सियासत 5 साल इस हल्के के अवाम के लिए करते हैं तो फिर आपके खून के अंदर भी यही होना चाहिए। एनी हो, तो मैं बात कर रहा था इरफान शाह साहब की। इरफान शाह साहब को मैं इस टाइम NPP 24 की दौड़ में एक तरफा पोजीशन पे देखता हूँ कि उन यावर कमाल उनके करीब करीब भी नहीं है। तो PP 24 में
راجہ یاور کمال میرے نزدیک مطلب سیاسی دوڑ سے آؤٹ ہے. عرفان شاہ صاحب واضح اور تگڑی لیڈ سے الیکشن جیتیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے، ایک پرسپشن بنایا ہوا انہوں نے نون والوں نے بھی، کہ الیکشن ساڈا ہے، ساری گل ہو گئی ہے. گل ہو بھی اگر گئی ہے تو 10 15 20% دی ہوئے گی. راجہ یاور کمال صاحب کو جتاؤ واسطے تقریباً 60% کا دھکا لانا پڑا، جو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. کوئی اور سیاسی جماعت ہو تو لگ بھی سکتا ہے. طریق لبیک کا کارکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 15% کے دھکے سے زیادہ سہ سکے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے. بہرحال جو پوزیشن نظر آ رہی ہے، اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں یا 10 15 کا بھی دھکا لگتا ہے تو عرفان شاہ صاحب کو اس 10 15 کے دھکے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ واضح اکثریت سے یہ الیکشن PP 24 کا جیت رہے ہیں. چودھری زاہد اختر اور بلال اظہر کیانی، ان میں بہرحال مقابلہ ہوگا. جیتے تو مجھے چودھری زاہد اختر ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ فریش ہیں. پھر ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے ہم لوگوں کا کہ یہ پارٹی مطلب حکومت میں آنے والی ہے. جیسے پورے ملک میں یہ ایک ہے کہ اگلا پرائم منسٹر آپ کے میاں نواز شریف صاحب ہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ اپنے مفادات کی خاطر، تھانہ کچہری، ان چیزوں کی خاطر وہ چڑھتے سورج کی طرف منہ کرتے ہیں. تو وہ بہرحال مقابلے میں ہیں. ان دونوں میں جو بھی جیتا مارجن تھوڑا ہی ہوگا، لیکن میری اپنی رائے اگر آپ مطلب میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ مجھے چودھری زاہد اختر جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تھا جی NA 60 اور PP 24 کا انالیسس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. بظاہراً کیا ہے، پس پردہ کیا ہے، کوشش کی کہ آپ تک تمام حقائق رکھوں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے نئے کسی موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.